Good morning, students of the BSc second year classes. Today's topic is the structure and function of the kidney, because I was discussed about in the previous lecture what is the excretion process, and different kinds of the excretory organs are found into the vertebrate animals. So on the basis of the excretory products that is excreted by the vertebrate animals is classified into three categories: monotelic, ureotelic, and uricotelic. So that on the basis of the excretory product, that is the animal which are adapted to the excretion process, so that to the whole the process of the excretion is completed by the paired of kidney of the animals. So in the previous lecture I was mentioned about the evolution process. That is the evolution. Always we discussed about the evolution is the gradual process in which the changes which are occupied or acquired by the organism or the animals according to the environment, which is known as the adaptation, because on the basis of there are the modification according to the environment, all the animals survive. So that on the basis of the evolution, the animals from to the fishes to the mammals, which have to the different kinds of the kidneys, to the pronephric kidneys, or the arcunephric kidney, mesonephric kidney, and then metanephric kidney. This is the more further and further more advanced, more complex, because in the evolution process the animals is further and further is adapted to the according to the environment. So today's topic is related to the metanephric kidney. These are particular animals. We can say that about to the description of the human kidney, and that to their place, what is the structure, what is in which to the different kinds of the features and to the parts which communicating to each other, and that's to the representing a typical structure of the kidney, and who's the units, and what is their function. The unit of kidney is the nephron, and a lot of the nephrons, millions of the nephrons which are constitute together in the one kidney, and that's to performing to the numbers of the function to maintain blood pressure and release to the hormones, and to the also excreted to the best product, so that to the first of all, for the better knowledge, we are first go out their structure, then function. So today's topic, kidney structure and function of the typical kidney, because the typical mammalian kidney, typical man kidney, are the human beings which are adopted have to the a typical kidney. तो आज के चैप्टर में हम बेसिक सेकेंड ईयर क्लासेस से जुड़ी जो फिजियोलॉजी हमारी चल रही है, उसके अंतर्गत एक पिछले लेक्चर में हमने एक्सक्रीशन प्रोसेस शुरू किया था. उसी एक्सक्रीशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हम जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है, जिसके माध्यम से होता है, उस ऑर्गन्स को आज हम रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम किडनी बोलते हैं. और किडनी यहाँ पे एनिमल्स, डिफरेंट प्रकार जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार की किडनी को कंटेन करते हैं, क्योंकि एवोल्यूशन प्रोसेस में लगातार जो है प्राइमरली से जो है हायर वंस में जाता है, तो वो लगातार उसमें चेंजेज आती हैं. इसीलिए हम बार बार कहते हैं आर्कियोनेफ्रिक किडनी, मेसोनेफ्रिक किडनी, एंड देन मेटानेफ्रिक किडनी. तो इस प्रकार से हम आज जो है एक एनिमल्स के अंतर्गत ह्यूमन बींग्स की किडनी को या मैन से किडनी को देखेंगे, उसके प्लेस को देखेंगे, उसके अल्टीमेट फीचर्स को देखेंगे, और उसके फंक्शन को जानेंगे, उसके यूनिट्स को जानेंगे. तो आइए हम देखते हैं कि किडनी कहाँ पे सिचुएटेड होती है, कहाँ पे उसका लोकेशन होता है, और वो कितने नंबर में होती है, उसका क्या शेप होता है.
क्या साइज होती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हम आज इस लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। नाउ गो टू द इनिशिएशन ऑफ द टॉपिक्स, द बिगिनिंग ऑफ द टॉपिक्स, the starts of the topic of the kidney. There are the two kidneys present into the males or the particularly human beings, into the male or the females. We have just mentioned before to the explanation of the kidney that the so many kinds of the system in the body, but here the mention that to the urinogenital system. Urino, that is the indicating to the excretions, and to the genital is the reproductive system. Both of the system is communicating to each other at that time. That is called to the urinogenital system, and in the urinogenital system is representing into the when the because to the urine which are passed from to the kidney through the ureter in the urinary bladder, and then outside of the body through the urethra in the both male and the female, both are the conditions. So that and is also reproductive system is also help into the reproductive behaviors through the system. So that first of all we know that what is the structure of the kidney. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किडनी का लोकेशन कहाँ है, हमारी बॉडी में किडनी कहाँ पाया जाता है, किस रीजन में पाया जाता है। जैसा कि मैंने हमेशा आपको बताया है कि अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे बॉडी का अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जैसे हम हेड रीजन को लेते हैं सेफेलिक बोलते हैं, ये इसको थोरेसिक बोलते हैं, इसको एब्डोमिनल बोलते हैं, लंबर रीजन बोलते हैं, और नीचे जाएंगे कॉक्सियल रीजन होता है। तो इस तरीके से लगातार रीजन्स में ये डिफरेंशिएट होता है, अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंशिएट होता है। तो उसी प्रकार से जो किडनी हमारी होती है वो प्लेस ऑन की जाती है, प्लेस्ड होती है बोथ आर द आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्री कॉलम, बिकॉज दिस इज द मिडिल or the axial region which have to the vertebral column, and either side of the vertebral column there are the two numbers of the pairs of the kidneys present, left and the right side. दोनों तरफ एक लेफ्ट और राइट साइड में वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ जो है एक एक किडनी पाई जाती है, इसलिए हम पेयर्स बोलते हैं। ये इसका जो एक्चुअल लोकेशन है वो मैंने कहा कि वर्टिब्रल कॉलम के आइदर साइड में और एब्डोमिनल रीजन के थोड़ा नीचे। तो एब्डोमिनल रीजन के थोड़ा जब नीचे जाते हैं तो इस रिस्ट वाला रीजन या थोड़ा सा उसके ऊपर वाला रीजन को बोलते हैं लंबर रीजन। तो both are the kidney which are left and the right side, either side of the vertebral column is present into the lumbar region, and that lumbar region demonstrated after the abdominal region. तो एब्डोमिनल रीजन के बाद जो है लंबर रीजन आता है, उस रीजन में ये किडनी प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा बैकवर्ड साइड में ये इसका सिचुएशन होता है, और ये जो दोनों किडनी होती हैं लेफ्ट और राइट साइड की किडनी थोड़ा सा बिलो अप होती है, नीचे की तरफ होती है, क्योंकि राइट साइड विच आर हैव टू द लीवर, and due to the presence of the liver, that the right kidney is going into the little bit below in comparison to the left. तो लेफ्ट किडनी के कंपेरिजन में राइट किडनी जो होती है थोड़ी सी नीचे होती है, क्योंकि यहाँ पे लिवर प्रेजेंट होता है और उसके आधार पे वो उसका सिचुएशन होता है। और इसके बाद जो है दोनों के दो किडनीज होती हैं, वो उसके दोनों किडनी जब आप देखेंगे तो उसके अपेक्स रीजन पे वहाँ पे एड्रिनलर ग्लैंड्स भी पाई जाती है, जो कि कप सेट स्ट्रक्चर होता है, उसका कोन सेट स्ट्रक्चर उसके ऊपर पाई जाती है। हम डिस्कस करेंगे इसको एंडोक्राइन सिस्टम में। फिलहाल हम किडनी को देखते हैं। तो दोनों किडनीज जो होती हैं वो अपने दोनों किडनी से जब हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं तो जैसा मैंने बताया कि दोनों साइड में है बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। बीन का मतलब होता है सेम की तरह, सेम के अगर आप सीट्स देखेंगे तो उसी
तरीके से स्ट्रक्चर होती है, जैसा हमने यहाँ पे बनाया है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर बोला जाता है। और ये जो है रेडिश कलर की, रेड डार्क कलर की, जब ये इसका जो है ऑब्जर्वेशन हिस्टोलॉजिकल, जब इसको ऑब्जर्व करते हैं तो समय ये दिखाई पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसा मैंने कहा कि ये क्या है, ये यूरोजेनाइटल सिस्टम का भी पार्ट होता है, क्योंकि जैसे मैंने अभी पहले भी मेंशन किया कि जो किडनीज होती हैं वो एसोसिएट करती हैं अपने यूरेटर से, किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में, और ये यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर जो है एसोसिएट करता है रिप्रोडक्टिव जो हमारा सिस्टम होता है वो से यूरेथ्रा के माध्यम से। ये जो यूरिनरी ब्लैडर में जहाँ पे यूरिन होता है जो कि किडनी से बनता है, वहाँ से जाके वो एक्यूमुलेट होता है। तो हमने क्या बोला कि बोथ ऑफ द किडनी विच आर एसोसिएटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स बिकॉज या और द थ्रू द यूरेटर इन द यूरिनरी ब्लैडर in the ureter in the urinary bladder, the urine which is are accumulated, which are formed in the nephrons of the kidney, so that these are outside of the body through the urethra. The urethra is the commonest part which are associated to the reproductive system and to the of the both of the functioning. तो आपने देखा कि वो जो है यूरेथ्रा जो बोला जाता है, जो हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती हैं उसके माध्यम से वो बॉडी पार्ट से निकलता है। एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं, एसोसिएटेड ऑर्गन्स होती हैं जो कि दोनों के दोनों बिहेवियर में, दोनों के दोनों फंक्शनिंग में भाग लेती हैं। तो यहाँ पे तो हमने आपको ये बताया। इसके बाद हम चलते हैं किडनी का, जो मैंने कहा कि ये तो था यूरिन के माध्यम से इसका एसोसिएशन। उसी प्रकार से जब आर्टरीज और वेन्स भी रिप्रेजेंट की जाती हैं, देखिए यहाँ पे हमने रेनल आर्टरी, और अब हमने आपको हमेशा बताया है कि कुछ खास सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आर यूज्ड फॉर दैट टू द पर्टिकुलर ऑर्गन। दैट इज द ब्रेन इज अ सिफेलिक, दैट इज द लंग्स रीजन इज टू द thoracic region, or the stomach is the gastric region and kidney is the renal part। तो हमने कहा कि बॉडी पार्ट्स में अलग अलग जगह को अलग अलग वर्ड से विशेषकर यहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो उसी प्रकार से जो किडनी होती है वो रेनल पार्ट्स बोली जाती है, रेनल ट्यूब्यूल्स होते हैं इसमें। तो उसी के आधार पे यहाँ पे देखिए रेनल आर्टरी और रेनल वेन्स होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यूरेटर के अलावा रेनल आर्टरी और रेनल वेन्स। अब ये क्या कम्युनिकेट करेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किडनी इज बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन्स होता है बॉडी का, और यहाँ पे ये कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम अभी सारी चीज़ों को मेंशन करेंगे। इसके बाद जो रेनल आर्टरी होती है वो जाके जुड़ती है आपके आर्टरी से और जाके हार्ट में बिलोंग करती है। जो आपका जो आर्टरी हार्ट से डिसेंडिंग अवाटाज आती है, वो आगे चल के आर्टरीज और एट्रियोल्स में कन्वर्ट होके रेनल आर्टरी के माध्यम से ये इसमें प्रवेश कर जाती है, एंट्री कर जाती है। उसी प्रकार से जो रेनल वेन्स होती है वो कम्युनिकेट करती है, फर्दर कम्युनिकेट करती है आपके हार्ट में, जो कि इन्फीरियर वेना केवास होती हैं, उनके माध्यम से ये जो वेन्स होती है वो जाके जुड़ती है। तो उस प्रकार से जो पूरा का टोटल ब्लड होता है, वो मैंने कहा कि टोटल जो अमाउंट ऑफ द ब्लड विच आर गोइंग इन द किडनी इज द प्योरीफाई, किडनी इज द फिल्ट्रेट to the all the materials which are have to the along with the blood, so that तो यहाँ पे ब्लड जो है पूरा आता है और यहाँ पे छन्नी की प्रक्रिया होती है, फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म होता है, और फिल्ट्रेशन के बाद रीअब्जॉर्प्शन भी प्रोसेस होता है। तो किडनी जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये ऑर्गन्स है, जिसके माध्यम से ये प्यूरिफिकेशन की, फिल्ट्रेशन की और रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है। तो इन सब सारी चीज़ों को किडनी जो से बिलोंग हम करते हैं, किडनी जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हम देखते हैं, तो इन सारे फीचर्स को एक डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, देयर आर द टू किडनीज, डार्क बीन शेप्ड प्लेस ऑन द आइडर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इन द लंबर रीजन। जैसा मैंने अभी बताया कि दो किडनीज पाई जाती हैं जिनका जो है वो डार्क शेप्ड होती है और डार्क कलर्ड होती है, और बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, और जो कि प्लेस ऑन होती है
वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ लंबर रीजन में। तो यहाँ पे लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि किडनी है क्या एक्चुअल में, उन सारी किडनी को समझते हैं, उसके बाद और उसकी फंक्शनिंग, क्योंकि किसी भी ऑर्गन्स का, किसी भी थिंग्स का, किसी भी पर्टिकुलर स्पेशल ऑर्गन्स का अगर फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर हम जब जान लेते हैं तो उसे वो वही उसका डेफिनेशन होता है, वही क्वालिटीज उसको डेफिनेशन के अंतर्गत रखा जाता है। हम देखते हैं वन ऑफ अ पेयर ऑफ ऑर्गन्स इन द एब्डोमेन, the abdominal region which are associated to the lumbar region, so that is the mention that to the one of a pair, the pair of the kidney is one in number is the each side। एक एक तरफ जो है वे पेयर्स में एक जो किडनी होती है वो दोनों स्तरों में पाई जाती है। ऑफ द ऑर्गन्स इन द एब्डोमेन द किडनीज रिमूव वेस्ट एंड द एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द ब्लड। यहाँ पे आप समझने की जरूरत है, इसके डेफिनेशन के माध्यम से एक एक लाइन हम आपको बताते हैं। द किडनीज रिमूव वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द ब्लड। अब आप समझिए किडनी क्या करती है। मैंने पहले भी बताया किडनी जो है ब्लड जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो उसको फिल्ट्रेट करती है, उसके बाद रीअब्जॉर्ब करेगी और उसके बाद यूरिन का फॉर्मेशन करेगी। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे किडनी क्या कर रही है, रिमूव वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको आइसोलेट कर रही है, उनको डिवाइड कर रही है, उनको अलग कर रही है, रिमूव कर रही है। और रिमूवल कब होगा, जो कि जबकि अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म होगा। हम आगे के लेक्चर में आपको बताएंगे कि क्या अल्ट्राफिल्ट्रेशन कैसे होता है और क्या होता है और रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहला फंक्शन है कि वो जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं यूरिन के फॉर्म में या किसी और भी जो मटेरियल्स उसके साथ में होता है उसको क्या करता है, रिमूव करता है। और जो यूरिन होता है जो उसकी मात्रा होती है एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द ब्लड, जो ब्लड से एक्स्ट्रा वाटर होता है, एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द ब्लड जो यूरिन के फॉर्म में होता है। यहां पे हमने लिखा है एज अ यूरिन द एक्सेस अमाउंट ऑफ द वाटर विच आर पासेस फ्रॉम टू द बॉडी। एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द ब्लड एज अ यूरिन, वो यूरिन के रूप में उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। एंड हेल्प कीप द केमिकल सोडियम पोटेशियम कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। और बॉडी में कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम को क्या करता है, हमेशा बना के रखता है, हमेशा उसको टॉलरेट करता है, उसको इक्विलिब्रियम लेवल पे रखता है। क्योंकि बॉडी में आयंस का जो बैलेंस है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आयंस का बैलेंस बिगड़ेगा तो आपकी बॉडी का जो फंक्शनिंग है वो बिगड़ जाएगा। तो वो अब देखिए इंपॉर्टेंट मतलब बार अलग अलग जो है उसके महत्वपूर्ण फंक्शन आ रहे हैं। तो पहली बात क्या हुई कि वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का काम करता है। दूसरी चीज हुई कि जो है एक्स्ट्रा वाटर को, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है यूरिन से उसको मेंटेन करने का काम करता है। and help keep the chemical sodium, potassium, calcium extra balance in the body which are one to that about to the in the equilibrium level of the all the materials, all the ions and to the substances, so that in the here in the function of the kidney which are maintained to the ions, particularly to sodium, potassium and calcium and extra water from the blood। the hormonal, यहाँ पे हार्मोनल एक्टिविटीज होती है, वहाँ यहाँ पे बार बार बोला जा रहा है एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द ब्लड से एक्स्ट्रा वाटर जो होता है, क्योंकि यहाँ पे एडीएस एंटी डायरेटिक हार्मोन्स होते हैं जो एक्सेस अमाउंट ऑफ द वाटर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ये हम आगे के लेक्चर में जब आपको नेफ्रॉन्स पढ़ाएंगे तो वहाँ पे मेंशन करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे शॉर्टली आपको मेंशन किया, जस्ट shortly to mention that about to the ADH antidiuretic hormone, also called to the vasopressin, is one of the hormones which are play important role into the excess amount of the water from to the from the nephrons during to the excretion process, so that to the maintain to the water in the body in the urine, so that तो हमने देखा कि ये मेंटेन करता है। अब किडनी आल्सो मेक द हार्मोन्स दैट हेल्प कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड टू द स्टिमुलेट बोन मैरो टू द मेक आरबीसी।
बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक और दो और भी है। सब क्या है कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। मेक हार्मोन्स, मतलब किडनी, आप ये कह सकते हैं किडनीज आल्सो परफॉर्म एज अ इंडोक्राइन सिस्टम बिकॉज दीज आर द सिक्रीटिंग टू द हार्मोन्स to maintain to the blood pressure and to the also stimulate to the production of the RBC through the one of the hormones। यहाँ पे RBC प्रोडक्शन जो होती है वहाँ पे एक हार्मोन्स होती है रेनिन हार्मोन्स, उसकी मदद से ये जो है अपना इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स होती है या इरिथ्रोजेनिन हार्मोन्स होती है। यहाँ पे जो किडनी से निकलती है इरिथ्रोपोइटिन और इरिथ्रोजेनिन हार्मोन्स उसको बोला जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आरबीसी को बनाने के लिए। जो बोन मैरो होता है उसको स्टिमुलेट करती है आरबीसी का प्रोडक्शन करने के लिए। तो प्रोलिफरेशन ऑफ द और द नंबर्स ऑफ द आरबीसी विच आर फॉर्म्ड that is the place of the body is called to the bone marrow, and the cells of the bone marrow is stimulated by the hormones, the erythrogenin or the erythropoietin is secreted by the kidney, and the kidney is as a functioning of the as a endocrine functioning of the hair is the same। तो यहाँ पे इंडोक्राइन फंक्शनिंग के रूप में जो किडनी होती है वो फंक्शन कर रही है, जो हार्मोन्स को निकाल रही है, और हार्मोन्स को निकालने के कारण यहाँ पे ये आरबीसी का प्रोडक्शन कर रही है। और दूसरी तरफ जो है ये ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करती है, क्योंकि जबकि आपके बॉडी में ब्लड का पहले फिल्ट्रेशन होगा, फिर उसका रीएब्जॉर्प्शन होगा, और उसके बाद तो ब्लड को क्या कर देगी, प्यूरिफाई करती है। तो इस प्रकार से वो ब्लड के प्रेशर को भी मेंटेन करती रहती है। तो यहाँ पे हमने एक किडनी क्या है और किडनी क्या क्या रोल प्ले करता है, उन सब चीज़ों को हमने थोड़ा सा लेक्चर के माध्यम से वहाँ पे आपको बताया। इसके बाद हम चलते हैं कि किडनी जो कि किडनी का स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है उसको देखते हैं। तो किडनी के स्ट्रक्चर को जानने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया है, किडनी का डायग्राम है। थ्रू द ग्राफिक्स के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से हमने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है कि किडनी जो कि excretory organs है, which are kidney is the excretory organ which responsible for the excretion or the excretion of the excretory products, nitrogenous waste material through the systems, through the following systems which are as to the kidney, nephrons, to the renal minor and the major calyxes, pelvises, and through the ureter in the urinary bladder, and after that to the urethra the urine is passed out। तो ये एक फॉलोइंग सिस्टम्स है जिसके माध्यम से पूरी की पूरी जो हमारा यूरिन होता है ये या फिर ये पास आउट होता है, किडनी परफॉर्म करता है। तो हम देखने का प्रयास करते हैं। जस्ट लुक एट हियर ऑन द वाइट बोर्ड, I map to the particular diagram or the typical structure of the kidney for to the better or the better understanding, better implementation, better storement in the brain, so that to the typical kidney, this is the mammalian kidney। ये एक मैमेलियन किडनी है जो कि एक किडनी को रिप्रेजेंट किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं दोनों तरफ किडनी होती है, लेफ्ट एंड राइट साइड में, तो एक किडनी को लिया गया है। उसके पहले हम थोड़ा सा आपको एक्सटर्नल फीचर बता देते हैं कि एक्सटर्नल फीचर में आपने देखा कि किडनी पाई जाती है, और किडनी जो होता है उसमें बाहर की तरफ, जैसा मैंने कहा कि लंबर रीजन में है, तो लंबर रीजन में राइट किडनी को लेंगे तो वो थोड़ी सी नीचे होती है लेफ्ट के कंपेरिजन में। और वहां से मैंने कहा कि एक पॉइंट है, दैट इज द पॉइंट, this is the point which called to the hilus, and this point of the hilus is originated the ureter and renal artery and renal vein। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी में देखेंगे तो आपको बीन सेड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा और एक ऐसा प्लेस दिखाई पड़ेगा जिसको हम हाइलस बोलते हैं। उसी हाइलस से
जो रीनल आर्टरीज होती है, रीनल वेन्स होती हैं, और उसके साथ साथ में जो हमारी यूरेटर्स होती हैं वो वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं जाके यूरिनरी ब्लैडर में, और जो रीनल आर्टरी और जो वेन्स होती है वो इंफीरियर वेना केवा में और डिसेंडिंग एवार्टा के माध्यम से जुड़ी रहती है, और पूरे बॉडी में ब्लड जो पूरी बॉडी में ब्लड का सप्लाई होता है वो इस किडनी के माध्यम से, इन किडनीज के माध्यम से प्योरीफाई और रीअब्जॉर्ब किया जाता है और यूरिन को फॉर्म करके बॉडी से बाहर थ्रू द नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म में निकाल दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे समझना है। तो देखिए किडनी है, अब हम इंटरनल थोड़ा सा आपको बता दें, ये जो किडनी का स्ट्रक्चर था ये हम कह सकते हैं कि जो कि मैंने पहले भी प्लेस ऑन किया कि किडनी जो होती है वो बिन शेप्ड स्ट्रक्चर है, और ये जो है राइट किडनी स्लाइटली ऑन द लोअर साइड, द आउटर सरफेस ऑफ द किडनी इज द कॉन्वेक्स whereas द इनर सरफेस इज द कॉन्वेक्स। आउटर जो किडनीज है ये आउटर सरफेस बोला जाता है, इसको हमको बोलते हैं कॉन्वेक्स। डू you are the better understand about to the convex and the convex and the concave. There are the two words are they used for the description of to the structure of the kidney. Into the outermost structure is the convex and the inner structure is the convex. Just like to the this type of the diagram is mentioned here to the this type and that type structure. This is the concave and this is the inner side is the this is the convex and this is the concave. So both sides of the surfaces is have to the concave and the convex features. तो यहाँ पे कॉन्केव और कॉन्वेक्स टाइप का होता है, और मैंने जैसा बताया कि हाइलस होता है, वहाँ से यूरेटर ओरिजिनेट होता है, बैकवर्डली जो है उस यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा रहता है और उसी स्थान से रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स भी काम करती हैं। तो अब जब हम इंटरनल मैकेनिज्म में जाएंगे तो पूरे की पूरे किडनी को यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि किडनी कितने भागों में विभाजित होती है और किडनी का जो क्या कहते हैं डिविजन्स है उसमें क्या पर्टिकुलर फीचर्स है, नेफ्रॉन्स का सिचुएशन कहाँ पे होता है, उस किस फॉर्म में होता है, उसका एसोसिएशन किससे होता है। तो लेट अस सी हियर टू द डायग्राम ऑफ द किडनी, अ टिपिकल मैमेलियन किडनी which are have to the different kinds of the parts and to the features as well. So through this system, through the blood which are come from to the renal artery into the kidneys, and after the filtration and the reabsorption process, that is the blood which are separated from to the all the materials which are borne out once again in through the renal veins of the renal veins is communicated to the inferior vena cava into the right auricle of the heart. So that this is the cycle, this is the coordination process of the all the systems. So that तो यहाँ पे रिनल आर्टरी और रिनल वेन के माध्यम से ब्लड जो होता है वो हार्ट से आता है और फिर वो बॉडी हार्ट से फिर चला जाता है। जैसा मैंने बताया है कि जो डिसेंडिंग अवाटाज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करती हैं और जो कि रिनल वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करती है। तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के माध्यम से अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लोअर, तो किडनी लोअर मोस्ट ऑफ द पार्ट में होती है, तो वहाँ पे इंफीरियर वेना केवा से जो कि ब्लड रिसीव की जाती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जाती है, तो वो रिनल वेन के माध्यम से फिर से हार्ट पे चली जाती है। और रिनल आर्टरी जो कि डिसेंडिंग अवाटा जो लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में ब्लड को कंटेन करके लेके आता है, तो वो पूरे ब्लड को जितने भी सबस्टांसेस होती हैं, जैसा सबस्टांसेस की हम बात कर रहे हैं कि जैसा आप क्या होगा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट होगा, हम आपको बताएं ग्लूकोज होगा, लिपिड होगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, वाटर, एंजाइम, हार्मोन्स, विटामिन, जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो ब्लड के माध्यम से एज अ मीडियम
सर्कुलेट करती हैं वो किडनी में आके क्या होती है, फिल्ट्रेट होती हैं। फिल्ट्रेट होने के बाद रीअब्जॉर्ब होगी और रीअब्जॉर्ब होने के बाद जो कि यूरिन के फॉर्म में जो वाटर होता है, यूरिन बनता है और वो यूरिन वेस्ट मटेरियल के साथ में बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू द ट्यूबुलर सेक्रीशन। तो यहाँ से हम अब इंटरनल फीचर्स को समझते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को समझते हैं किडनी को और देखते हैं कि क्या फीचर है। तो देखें ये किडनी है, अब इसको हमने क्या किया, इंटरनल स्ट्रक्चर को दिखाना है हमें। तो देखते हैं, तो पहला जो लेयर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गो नाउ टू द लेवल ऑफ टू द bin shaped structure of the kidney, which have to the outermost layer, outermost cover of the kidney is called to the capsule, which are protective in nature. Capsule is also capsule. If the capsule is present into the any parts, any organs or the outermost of the cell, that is the one of the roles is that is the only is the role of the protection. So that to the this is the capsule. After that, kidney is divided into two regions. दो पार्ट में बटा होता है. There are two regions, outer and inner. And outer and inner. There are the outer region को कार्टेक्स बोलते हैं और inner region को मेडुला बोलते हैं. लेकिन इसमें अट्रिब्यूटरी या फिर कह सकते हैं फर्दर जो है डिवाइडेशन होता है, तो ये दो अलग अलग पार्ट्स में बढ़ जाती है. डायग्राम के माध्यम से समझते हैं पहले इसके डिवाइडेशन को. तो देखिए सबसे पहला डिवाइडेशन क्या है, इसमें कई कम्युनिकेटिव डिवाइडेटिंग लेयर्स हैं. देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट लेयर्स है और इस कैप्सूल और इस पहली जो लेयर्स है उसके डिस्टेंस को हम कवर करेंगे तो उसको बोला जाता है आउटर कॉर्टिकल जोन. देखिए ये आर्टिकल जो दैट इज द स्पेस इन बिटवीन टू द कैप्सूल एंड टू द कॉर्टेक्स रीजन इज द आउटर कॉर्टिकल जोन एंड देन टू द फ्रॉम द आउटर कॉर्टिकल जोन फ्रॉम द मेडुला रीजन्स जक्स्टा मेडुलरी जोन. तो दोनों को मिला के आउटर कॉर्टिकल जोन को और जक्स्टा मेडुलरी जोन को दोनों को मिला के ये कॉर्टेक्स कहलाता है, मतलब ये कॉर्टेक्स का भाग है. तो आपने देखा कि ये पूरा रीजन अगर हम यहाँ से मिलाने का प्रयास करें, यहाँ से लेके यहाँ तक जो रीजन होगा वो कॉर्टेक्स का रीजन होगा और उसमें पहला रीजन आउटर कॉर्टिकल जोन और दूसरा रीजन जक्स्टा मेडुलरी जोन होता है. अब इसके बाद हम मेडुला की बात करेंगे. तो देखिए यहाँ पे एक फीचर्स ये है और दूसरा ये एक लाइन्स है. तो ये जो पहली लाइन है ये आपस में एक ही रहती है, एक है. तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं ये है. तो एक पहले रीजन को ये आउटर जोन हो गया, ये पहले लेयर से ये इस लेयर तक ये आउटर जोन में हो गया और यहाँ से लेके जो पिरामिड्स बनेंगी, जो कैलिसेस बनेंगी वहाँ तक इनर जोन होगा. तो उसको मेडुला बोलते हैं. तो मेडुला में भी दो भाग हैं. मेडुला इज आल्सो डिवाइडेड इनटू द टू रीजन्स विद आउटर जोन एंड द इनर जोन. दैट इज द इनिशिएटिंग फ्रॉम टू द जक्स्टा मेडुलरी जोन एंड टू द completion up to the major minor calyxes. So there are the two distinguished part of the kidney is the cortex and the medulla, which are have to the also to the outer cortical zone, juxtamedullary zone, and in the medulla is the outer zone and the inner zone. अब यहाँ तक तो हमने आपको बताया. अब इसके बाद अब इसके इंटरनल मैकेनिज्म, इंटरनल फीचर्स में चलेंगे. तो देखें यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार के फीचर्स 2-3 बनाए हैं. इस फीचर्स को यहाँ पे हमने इंडिकेट किया है. इस रीजन को पिरामिड्स बोलते हैं. ये पिरामिड्स होता है, ये पूरे रीजन में फैला होता है. यहाँ पे तो इंडिकेट किया गया है, आपको समझाने के लिए 2-3 बनाया गया है. नहीं तो पूरे के पूरे किडनी में ये पिरामिड्स पूरे फैले रहते हैं, पूरे पाए जाते हैं, स्प्रेड होते हैं. और इसी पिरामिड्स के नीचे या इंटरनली आपके नेफ्रॉन्स होते हैं. नेफ्रॉन्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. नेफ्रॉन्स के माध्यम से, नेफ्रॉन से ही किडनी जो है बना है, या नेफ्रॉन्स की यूनिट है इसका, किडनी का, जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों करेगा. मतलब अगर ये इसका कम्युनिकेशन कर दिया जाए तो किडनी का स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसी नेफ्रॉन्स के माध्यम से वर्किंग भी होगी, जो कि वर्किंग हमने अभी पहले कुछ मिनट पहले आपको बताया और आगे भी बहुत सारे फंक्शन को हम बताएंगे. तो देखिए दैट इज द पिरामिड्स रीजन.
और इस पिरामिड्स के आगे देखिए इस रीजन में जो कि हमने कॉर्टिकल जोन इंटरनली बता रहे हैं, ये मेडुलरी रेज है, रेज लाइक स्ट्रक्चर विच आर फाउंड इनटू द ऑन द हेड ऑफ टू द पिरामिड्स। अब देखिए पिरामिड्स क्या है, इन पिरामिड्स, पूरे पिरामिड्स में एक किडनी है और इसमें मैंने कहा कि मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन्स होती हैं, एक नहीं, दो नहीं, कई लाखों नेफ्रॉन्स होती हैं जो कि इसको एक दूसरे को कम्युनिकेट करती हैं। तो मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन्स विच आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर, दैट इज द इनर रीजन, सो दैट दिस इज द पिरामिड्स। इन द पिरामिड्स to the nephrons is associated together. The numbers of the nephrons is associated together, and that is the part is called to the that part is called to the, उस पार्ट को हम बोलते हैं जहां की जहां पर जो नेफ्रॉन्स होती हैं वो आपस में एसोसिएट करती हैं उस रीजन में, उसको कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बोला जाता है और उस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को ही कॉलम ऑफ बर्टीनी बोलते हैं, डक्ट ऑफ वेलाइनी, डक्ट ऑफ वेलाइनी विच आर रिफर्ड वेयर आर द पार्ट्स, वेयर आर द प्लेस आर द सो मेनी नंबर्स ऑफ द nephrons which are associated together and form to the collecting duct which are had to the urine from the preceding parts. तो वहां से वो लेती है। कॉलम ऑफ बर्टीनी is formed as the species from to the calyces। अब यहाँ पे ये देखें, ये इंटरलोबुलरी आर्टरी है, इधर इंटरलोबुलरी आर्टरी है, ये सारी आर्टरीज और वेन्स जो कि यहाँ से रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन होता है, ये पूरे आपके किडनी में स्प्रेड होती हैं। तो हमको आपको यहाँ पे क्या बताना है, ये देखिए, ये यहाँ पे क्या होंगी, थोड़ा सा अगर हम नेफ्रॉन्स की चर्चा करने लगेंगे तो नेफ्रॉन्स कुछ इस तरीके का होता है, जल्दी से ले लेते हैं ऐसे, ये घूमते हुए ऐसे जाके जुड़ता है आगे चल के, तो हम कल इसके अगले लेक्चर में बताएंगे। तो इससे ये नेफ्रॉन्स यहाँ पे एसोसिएट करता है और एसोसिएशन इसका क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया माइनर कैलिक्स, देन मेजर कैलिक्स, आफ्टर द पेल्विस, द रीनल पेल्विस बोला जाता है इसको, दैट इज द पेल्विस, द फ्यूरल सेप्ट होता है। तो हम यहाँ से लेके चलते हैं ureter which are opens in the kidney at the place where to the funnel shaped structure is called to the renal pelvis, and the renal pelvis is open into the major calyces, the funnel shaped structure which are found in the kidney, that is called to the major and the minor calyces, and the major calyces which leads into the minor calyces, and the minor calyces is associated to the collecting duct of the duct of Velini। तो ये एक पैसेज भी बनाती हैं, अभी हम पैसेज के फॉर्म में बताएंगे आपको। तो यहाँ से देखें, ये मैंने बताया कि ये पिरामिड्स रीजन है, यहाँ पे पाए जाएंगे क्या, आपका नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स का एसोसिएशन कैसे है, देखिए ये माइनर है, नेफ्रॉन जो कलेक्टिंग डक्ट हम बार बार बोल रहे हैं, या फिर डक्ट ऑफ वेलाइनी बोल रहे हैं, वो ओपन्स होता है माइनर कैलिसेस, फ्यूनल सेप्ट स्ट्रक्चर होती है, लीड्स करती है, क्योंकि यूरिन जब आगे बढ़ेगा, यूरिन किडनी से बन के निकलेगा, तो वो पैसेज के माध्यम से, एक पास के माध्यम से, एक सिस्टम के माध्यम से आपके यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच के और यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो देखिए दैट इज ओपन इनटू द minor, then minor is to the major, and the major is the renal pelvis, and pelvis is open into the ureter, and the ureter is goes into the urinary bladder, and then the urinary bladder is open into the urethra, so that this is the path, this is the systems which are followed by to the urine, and that through this system the water is drained
वाटर इज ड्रेन्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन। यूरिन के रूप में जो वाटर वहाँ पे जो रहता है वो माइनर कैलिसेस, मेजर कैलिसेस, रेनल पेल्विस और यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में पहुँचता है और यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्शन उसका यूरेथ्रा से होता है, तो वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। मेल और फीमेल जो कि दोनों के रीजन में ऐसा ही होता है, यूरेथ्रा के माध्यम से बॉडी से बाहर निकलता है। तो आपने देखा कि किडनी का जो एसोसिएशन है वो इस प्रकार से, ये हाईलेस्ट पॉइंट है जैसा मैंने पहले भी बताया, यूरेटर निकल रही है, वहीं से आर्टरीज और वेन्स निकलती हैं और आर्टरीज और वेन्स के यहाँ के कम्युनिकेशन से यहाँ से ये लीड्स करती है। अगर हम इस तरफ से आएंगे तो ये क्या होगा, यूरेटर, देन माइनर, फिर मेजर पेल्विसेस एंड देन पेल्विसेस इंटर इनटू द nephrons at the part of the nephron, that is the ducts of Bellini, that is the collecting duct, where are the lot of the all the nephrons of the kidney is associated the regions that is called to the, तो वहाँ पे एसोसिएट करते हैं उस रीजन को डक्ट ऑफ बेलाइनी बोलते हैं। डक्ट ऑफ बेलाइनी जो है वो रीजन्स है जहाँ पे पूरा का पूरा नेफ्रॉन्स का कम्युनिकेशन होता है, सारे नेफ्रॉन्स जुड़े होते हैं, तो और वो लीड्स करते हैं माइनर्स में, देन मेजर में, और फिर पेल्विसिस के माध्यम से वो बाहर निकल जाते हैं यूरेटर से, और यूरेटर से होते हुए वो यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से बाहर निकल जाते हैं। तो एक पैसेज है, कॉमन पैसेज है जिसके माध्यम से, तो आपने करीब करीब इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा फीचर्स देखा इस पिरामिड्स में। ये देखिए हमने ये कॉम्प्लेक्स एक्सटेंशंस बनाए हैं, इनके माध्यम से पूरा का पूरा रीजन बोलते हैं। एक रीजन यहाँ पे बनता है जिसको डक्ट ऑफ बेलाइनी बोलते हैं। तो इस फीचर के माध्यम से आपको ये समझ में आया होगा कि एक किडनी जो कि मैंने कहा कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन से बना है, वो नेफ्रॉन्स जो है कम्युनिकेट करके एसोसिएट होके डक्ट ऑफ बेलाइनी बनाता है, और डक्ट ऑफ बेलाइनी ओपन्स होता है माइनर कैलिसिस में, मेजर कैलिसिस में, फिर पेल्विसिस में, और देन यूरेटर से होता है यूरिनरी ब्लैडर के से ज्वाइन यूरेथ्रा से बाहर पास आउट कर देता है। तो ये किडनी का पाथ है, किडनी का रीजन है, किडनी का स्ट्रक्चर है, और इस माध्यम से हमने आज इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर्स किडनी का पढ़ा, जिसके माध्यम से हमने ये जानने का प्रयास किया कि किडनी जो होती है वो क्या होती है, किडनी क्या काम करती है। जैसा मैंने बताया कि हार्मोनल फंक्शनिंग करते हुए ये वाटर को मेंटेन करती है। हम आपको बता दें यहाँ पे जो मैंने पहले शुरुआत के लेक्चर में थोड़ा सा मेंशन किया कि ये वाटर को मेंटेन करती है। जब हम नेफ्रॉन्स पढ़ेंगे तो नेफ्रॉन्स का जब रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है तो वहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन अलग अलग पार्ट्स में होता है, क्योंकि जो नेफ्रॉन्स होता है वो भी डिफ्रेंशिएट होता है, वो भी अलग अलग पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट होता है। जैसा हम अभी मेंशन कर देते हैं, मल्टीपिगियन बॉडीज होता है, कैप्सूल होती है, रिनल बॉडीज बोला जाता है, वो आपकी ग्लोमेरुलस और जो है बॉडीज में कन्वर्ट होती है। फिर वो पीसीटी होती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर फेनल्स लूप्स होते हैं सेंडिंग एंड डिसेंडिंग, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती हैं, फिर कलेक्टिंग डक्ट ट्यूब्यूल्स होती हैं, फिर कलेक्टिंग डक्ट होती है, डक्ट ऑफ बेलाइनी जिसको आप बोलते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें पूरे नेफ्रॉन्स में होती हैं, और वहीं पे अलग अलग रीजन पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है वहाँ पे वाटर का पूरा का मेंटेनेंस होता है वो हार्मोन्स के द्वारा, और वो हार्मोन्स एडीएच होता है जो कि आपके पिट्यूटरी में दो रीजन्स होते हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो जो इंटीरियर वहाँ पे जो इंटीरियर रीजन्स होते हैं वहाँ से निकलता है वैसोप्रेसिन एंटी डायरेटिक हार्मोन, वो वहाँ से किडनी तक रिलीज होता है ब्लड के माध्यम से, और वहाँ पे पहुँच के ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पर रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस करता है, वाटर को मेंटेन करता है, वाटर की मात्रा को बनाए रखता है, और एक्सेस अमाउंट में जो वाटर होता है वो वहाँ से निकालता है, और रीअब्जॉर्प्शन करके पूरे बॉडी में वाटर के मेंटेनेंस को बना के रखता है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि keep extra water from to the blood as a urine and help keep the chemicals of the, तो इस प्रकार से hormones that help in the control of the blood pressure and to the stimulation of the bone marrow to the make।
तो ये अलग अलग जो फीचर्स फंक्शनिंग है ये हम अगले चैप्टर में फंक्शन ऑफ द किडनी में पढ़ेंगे, और ये ही आपका लास्ट जो है टॉपिक भी होगा इस चैप्टर का। उसके बाद हम न्यू चैप्टर पर जाएंगे। तो आज के चैप्टर में आपने पूरे फीचर्स को पढ़ा, और हम आपको बता दें किडनी का बहुत अलग अलग रोल है। किडनी तो जैसा आपने यहाँ पे मैंने बताया कि यूरिन का फॉर्मेशन तो करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेगा ब्लड के माध्यम से, जितने भी पूरे के पूरे जो सबस्टांसेस होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो जो आते हैं, जैसा मैंने फॉर्म्स में बताया कि हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, विटामिन्स है, ग्लूकोज है, फैट है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, वाटर, जितनी भी चीज़ें हैं उसका पहले फिल्ट्रेशन करेगा, फिर इसको रीअब्जॉर्ब करता है मेंटेनेंस के लिए, फिर इसका यूरिन को बनाता है और ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा। उसमें जो है ये बॉडी टेम्परेचर को बॉडी में जो आयंस हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, फिर डिटॉक्सिफिकेशन करता है, फिर ब्लड के प्यूरिफिकेशन करता है, और उसके बाद जो है ये हमारे जो आरबीसी को बनाता है। तो ये सारी जो फंक्शनिंग है वो हम अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में आपको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड of the today's topic, so that now related chapter which is known as to the function of the kidney is will proceed into the next topics, so that today's topic is closed. Thank you.